So hopefully we will be getting few options from you, sir. I Yeah, guess some of definitely. my students are really good, and if given a chance, I know about Butinex. I have heard so many things. I read so many things about Butinex, and Yes, yes, yes. I have fair idea that this is one company where employees are giving very. I mean, it's a very supportive and conducive environment when it comes to employee support. So Yeah, that's our, basically you can yes, say that is that your is the, USP. that is a USP of the Buttinex, that they consider their employee as a family all the time. So this type of thing are required in the society. We need to develop such culture, and I think that you are the torch bearer ones Yes, who yes, are making the companies realize that what yes. how they should be, rather harnessing their employees. No, no, no. That's So basically. You are saying uh, right thing. It is happening in the few of the company, but the company who pamper the employee and all everything. So it is beneficial for not one single side is beneficial for both the sides, for the employee and employer both. yes, yes, sir. Hmm. And I'm also very fortunate to have, know, to know you, because Yeah. I think that I have requested a number of times earlier also for so many Hmm. different types of responsibilities. Uh, for example, I once asked you for to become a guest of honor or chief guest for Yes. a Yes. program. Then again, I mean, you are also our member in the governing body, if I'm not Yes. wrong. Right? Yes. Yes. So Yes. Yes. you are always there to support us. You are always there to talk to us. You are always there to support and share your experience to the students. So we are just lucky enough to have you among us, sir. My Uh, pleasure. My uh, pleasure. Hmm. so you are kind enough, and it's a very kind gesture towards us that you have spared this time, and you are. I know that you are very busy, and you have taken some time off for us. Thanks Yes. a lot, sir. Thanks a lot, sir. But my intention is always to help those students, people, and if I am having something and they can get the advantage of, definitely I'm interested in giving to that, basically. Sir, that is why you are little different from other so many other companies, MD. That you are someone who are always lending your helping hand to the students and to the society in general. That Yes. video clip which you have shared, that also I watched the every single minute of it, Yes. and of course, Mm, yes. We are here, and we should be literally, if we are in a position to uh, help or to support society in general, we should yeah. come forward. Yes, And sure, that's sure. and that is what you have categorically shown to everyone, that how Mhm. being a MD of a company, and that a company which is a place in the digital world, in the business community. Yes. So thank you so much, sir. I think that Yeah. we should start. They will keep on coming. We have authorized here Ms. Shilpa Bhandari. She is the assistant professor and in the Department of Management Sciences, and she is one of the faculty placement coordinator. Okay. Similarly, we have Mr. Rahul Tripathi. Okay. He is also assistant professor in management sciences. Mm-hmm. He is also faculty placement coordinator. So these two guys will be there who will be coordinating the entire session. And Okay. Shilpa represents the MBA department, and Rahul Tripathi he is representing the BBS department. Okay. Great, great, great. So let me have this chance. Let me give this opportunity. I will be little privileged, sir, to introduce to the student that we have with us today, Mr. Bipin Kumar, and he is the managing director of Pertinex Solutions Private Limited. This is a company which has its own place, its own niche in the digital marketing area, and for the last 10 more than 10 years, it almost more than a decade, that the company it is providing support to various companies for its uh, uh, for the branding and advertising, and putting them the different companies, rather their clients, on different platform, and it is a trusted name. So we also shared with the student. I think student have gone through that video clip. Recently, he was interviewed by a news channel wherein he was appreciated
for the support and the services which he was providing in the COVID-19 time. So with this, students, I would like to welcome Mr. Vipin Kumar, the guest speaker for today's session. And the modus operandi of the today's session is that he will be speaking for 30-40 minutes, and then after he will be asking, the session will be open to the question and answer session. So any doubt, anything which you want to discuss, you can very well ask to the gentleman who is here today. But before asking question, please raise your hand, and so that we can really cater your question in this session. So that's all from my side. Thank you so much everyone for being here. And with this, I now request Mr. Vipin Kumar to kindly take the procession further. Thank you so Yes. much. I'm just de-sharing my screen so that if anything from your side, if you want, you can share it. Thank you so much. Yes. So, student, today topic is on a digital platform and upcoming opportunities. And definitely, if you talk about the upcoming opportunity, I would like to connect with the entrepreneurship and the digital platform. Definitely, we are going to discuss in today's session what is the importance of digital marketing in today time. So, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चूंकि डेफिनेटली मैंने वो फेस किया है चीजों को लेकर, डेफिनेटली मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा जो आपकी अभी जहां तक मुझे डॉक्टर नेविता ने बताया कि यू आर दी बीबीए स्टूडेंट, फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट एंड एमबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. सो डेफिनेटली एक बीबीए स्टूडेंट या तो वो एमबीए करेंगे और आइदर दे विल ट्राई फॉर ए जॉब. So entrepreneurship, I just wanted to connect you because it's a very important word in coming time, and that's you have to know today. So entrepreneurship basically, अगर मैं बात करता हूँ तो एक आप गूगल के ऊपर भी अगर जाएंगे तो डेफिनेशन आप देखेंगे तो activity and the process of start a new business and making the profit while investing the money. So अगर चैटबॉट ओपन है तो क्या कैन स्टूडेंट टेल कि हाउ मेनी स्टूडेंट वांट टू बी एंटरप्रेन्योर. तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो कि आई जस्ट वांटेड टू सी द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कि जो एंटरप्रेन्योर एज ए ओके. प्रथम चौहान जस्ट रेजिंग द हैंड. शुभम अग्रवाल इज रेजिंग द हैंड कि दैट ही वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर के बारे में अगर बात करूं, मेरी थोड़ी सी डेफिनेशन गूगल से, ऑक्सफोर्ड से थोड़ी सी डिफरेंस है. भव्या जैन इज सेइंग दैट शी वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. सो मेरा डेफिनेशन है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जैसे आप कहते हो कि आप बीबीए कर रहे हैं, डेफिनेटली आप तुरंत करके एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू ए जॉब. एमबीए स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे डूइंग ए जॉब. सो जॉब इज ऑल्सो, अगर आप अपने माइंडसेट को सोचते हैं कि जॉब आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, वहां पे आप सोचते हो एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय हैं. अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेंगे तो आप एंटरप्रेन्योर हैं. वो इस तरीके से कि अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह काम करेंगे तो अपना फुल डेडिकेशन दे पाएंगे. एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे तो आप सोचेंगे यार चलो कोई नहीं, मुझे सिर्फ सैलरी के लिए काम करना है, महीने के आखिर में मुझे सैलरी आनी है. वो आपको ग्रोथ नहीं देगी. सो यू हैव टू थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर. जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें तभी आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल दें. आप जॉब में रह के आप किसी कंपनी का सीईओ को देखें, आप बड़े से बड़े प्रोफाइल के ऊपर, दे आर डूइंग ए जॉब फॉर एनी ऑफ द कंपनी एंड दे आर बियरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अ एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर आप अगर कनेक्ट करें, मैं इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी किसी कंपनी में जाएं, आप अपना पूरे ऑनेस्टी के साथ 100% to 100% दें. अभी क्या होता है, जैसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि मेकिंग द प्रॉफिट्स. अगर आप किसी कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर कंपनी के, अगर आप मन से काम करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और विदाउट एनी हेजिटेशन वर्क करें तो डेफिनेटली आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. वो एक तरह से प्रॉफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दी योर सैलरी समहाउ. सो यहाँ पे क्या है, एक माइंडसेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं कि अगर हम जो जॉब कर रहा है वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर बनेगा नहीं. आप यहाँ पे रह के परफॉर्म कर सकते हैं कहीं ना कहीं. और जो उस कंपनी का एमडी है वो आपको देख रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को देख रहा है कहीं ना कहीं. तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो वहां पे आप एज ए बियर कर सकते हो कहीं ना कहीं. यू आर द एंटरप्रेन्योर. एक जॉब करने वाला बंदा भी एंटरप्रेन्योर है. अगर आप इसकी डेप्थ में सोचे, जो मैंने स्टेटमेंट दिए आप उसको
एक बार दोबारा सुने कि मैंने क्या बोला, कि अगर आप वहां पे अच्छा काम करते हैं, आपको इंसेंटिव होते हैं, आपको अप्रेजल मिलेंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, यू विल बी रिकॉग्नाइज एज ए गुड परफॉर्मर, दैट इज अगेन कमिंग टू द प्रॉफिट टू यू। एंटरप्रेन्योरशिप के ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब से बिजनेस से रिलेटेड, मेरे को लगता है कि जो ये स्किल है वो हर जगह रिक्वायरमेंट है आपको। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, सपोज यू आर ए स्टूडेंट, तो देन यू आर आल्सो थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है कि यू आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट, यू कैन बी द टॉपर ऑफ द कॉलेज। वो सारी चीजें जो एंटरप्रेन्योरशिप में है वो आप आज से सोच सकते हैं कि नहीं की। कई बार हम सिर्फ सोचते हैं कि यार वो जो बिजनेस से कर रहे हैं वो वही है कि नहीं की। आप हर जगह आप सोशली, आप अगर अटैच्ड हैं, सोशली अटैच्ड हैं, आप सोशल में भी अपने आप को लीड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन, आप शेयर करें। जरूर नहीं कि वो मॉनेटरी के रूप में आपके पास आ रही है, देन यू आर सेइंग कि नहीं यार मॉनेटरी के रूप में आ रही तभी मैं एंटरप्रेन्योर। नहीं, आप हर जगह वो उस तरह नॉन मॉनेटरी में भी कर रहे हैं, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। सो लाइक दिस आई जस्ट टेलिंग कि दिस इज बेसिकली द एंटरप्रेन्योर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बंदा हर लेवल पे अपना पोटेंशियल दे। आज का टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपके जरा सा चीजों पे अगला बंदा निकल जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक क्वालिटी क्या होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर? एंटरप्रेन्योर के अंदर वो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं कहीं ना कहीं, कॉन्फिडेंट होते हैं, प्लानर होते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कहीं ना कहीं, वो सारा चीज आप भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसे की जरूरत है, वो करने आप कहीं पे रह के भी आप अपनी चीजें बना सकते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन, कि हमेशा ऑन रहते हैं, दे नेवर गिव अप। वो आज भी आप कर रहे हैं कहीं नहीं कि आप स्टूडेंट में भी देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटी, ऐसी कॉमन क्वालिटी होती है जो आप हर लेवल में, हर फेज में आपको ये दिखेगी कहीं कि हाँ ये एक इस तरीके से आपको जो क्वालिटी अब मैं आपको बता रहा हूँ, हर लेवल पे, हर फेज पे आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। जब आज सेशन खत्म होगा, देन यू जस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ रिस्पॉन्सिबल गाय, कि हर जगह पे आप देखना, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो। तो वो सारी चीजें होती हैं। आज मैं इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो चीज शेयर करूंगा जो मेरी, जिस बेसिस पे मेरी एक लाइफ, मैं अपने आप की लाइफ को मतलब एक बेसिक नेचुरल वे में ऑपरेट करता हूँ कहीं कि आज आप कहीं भी बने, जैसे आप बीबीए कर रहे हैं, आप एमबीए करेंगे, कल के डेट में यू विल बी डूइंग अ जॉब। आप यू हैव टू बी, एक कहते हैं कि जो एक जितने भी लोगों ने अच्छा काम किया सब लोग उसको कल के डेट में कहते हैं वो ही इज मैड। तो अगर कुछ ऐसा काम करेंगे, जैसे लोगों कुछ आज की डेट में आप देखेंगे कि जहाँ पे जाएंगे वहां पे अगर ऑनेस्टी की बात करें तो लोग कहते हैं ही इज फूल। ये ऑनेस्टी की, आज की डेट में ऑनेस्टी की बात करें, नहीं, ऑनेस्टी ही आपकी की है। ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, किसके साथ? अपने आप से ऑनेस्ट होना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर ऑनेस्टी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका क्या एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरे को, मैं हमेशा अपनी लाइफ में इसको फॉलो करता हूँ। वो चीज मैं बता रहा हूँ जो मैं आज अपनी लाइफ को इतना इस समय तक लेके आया है कहीं ना कहीं, आज वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। स्किल एंड विल की मैं आज बात करूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि हम सेशन को उतना लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक शॉर्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा स्किल विल के बारे में। कई बार बच्चों के अंदर हर एक कैपेबल बंदे के अंदर स्किल होती है बट विल नहीं होती। कई बार आप हेजिटेट करते हो, आप मत हेजिटेट करो। अगर आपको लगता है कि जैसे कई बार आप क्लासेस में बैठे हो और आपके किसी प्रोफेसर ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, यू आर थिंकिंग यार मेरे क्वेश्चन गलत हो गए तो पता नहीं लोग हंसेंगे, लेट द पीपल लाफ, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको नॉलेज आ रही है, जो चीज आपको लग रहा है कि हाँ सही है, यू शुड टेल। ये होती है स्किल एंड विल। कल के डेट में अगर आपको लगता है कि नहीं इथिकली ये चीज सही है, यू शुड डू दिट। कई बार कुछ लोग इस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाते इसलिए पीछे रह जाते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा एक नई चीज सीखता हूं और डायरी में नोट करता हूं और इंप्लीमेंट करता हूं डेली बेसिस पे। और आप हमेशा नोटिस करना, डेली बेसिस पे आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी आपके मतलब प्रोफाइल में है, आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं कहीं ना कहीं, हर से कहीं ना कहीं। तो वो चीजों को कहीं ना कहीं आपको इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। कुछ भी चीजें सीखा, अच्छा ये चीजें क्या नहीं करना है, हमें ये जरूर जानना है क्या नहीं करना। अगर हम वो समझ रहे हैं तो वी आर अचीविंग दी वेरी गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कहीं ना कहीं आज की डेट में। आज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कमिंग टाइम पे, या फिर अभी आप एमबीए भी कर रहे हैं, बीबी के बच्चे एमबीए भी करेंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बहुत ही मेंटली स्ट्रांग रखता है। और टाइम मैनेजमेंट करते समय हमेशा इस चीज का ध्यान रखो आप कि वही टाइम मैनेजमेंट में चीजें आएंगी जो फिजिबल होगी। अब आपने कुछ ऐसी चीजें टाइम मैनेजमेंट में डाल ली जो उसमें फिजिबल है नहीं, तो वो आप फेलियर की तरफ जाए कहीं ना कहीं, या आपको यार वो तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल ही नहीं होगा कहीं ना कहीं। कुछ चीजें आपने ऐसी बना ली तो कहीं ना कहीं
टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक लाइन मैं हमेशा करता हूँ, आई यूजुअली मेंटेन अ डायरी, जहां पे मैं कल का जो भी शेड्यूल है वो आज मैं नोट करूंगा। प्लान योर डे टू डे ऑफ नेक्स्ट डे का शेड्यूल आज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कल सुबह आपको मॉर्निंग में उठ के ये सोचना नहीं है कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे क्लासेस अटेंड करनी है, मुझे इसके बाद अगर मुझे कोई ऑनलाइन अगर मुझे कुछ चीजें अटेंड करनी है तो वो करना है, सारी चीजें प्लान आउट में करनी कहीं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये हमेशा आप इस चीज को आपका बहुत ही प्रोडक्टिवनेस में ये सारी चीजें मेरे साइड से यूज होती है, जो मैं आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे आज आप कह रहे हैं कि जैसे ये आज मेरे उस समय जिस समय मैं था उस समय तो इतनी सारी चीजें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज आपके टाइम पे आपके कॉलेज इस तरह का सेशन करा रहे हैं जहाँ पे आपको प्रायर में नॉलेज मिल रही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं फॉलो योर कमिटमेंट। अगर आप किसी को भी कमिट, जैसे आप कहते हैं कि आप अगर आज मैं सेशन के लिए कमिट कर दूं आपके कॉलेज को और मैं अटेंड नहीं करूं, what will be the perception of your college? They will tell that they are not dealing, basically they will have a different perception, but if I am honoring the commitment तो the perception will be definitely change. तो आप कुछ भी कमिट करें, अगर आज आप अपने कमिटमेंट सिर्फ प्रोफेशनली नहीं होती है, पर्सनली भी होती है, आपने कुछ फ्रेंड्स को कमिट किया कि हाँ चलो ठीक है आज ये करना, आप करो, उनके लिए आपके माइंड में हमेशा एक अच्छी चीज बनेगी कि नहीं यार ही इज वेरी डेडिकेटेड गाय, और वो हमेशा रहेगी नहीं, और वो आपको हमेशा फ्यूचर में बेनिफिट देंगे कहने की। एक चीज और मैं शेयर करूंगा कि बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, ये मैं हमेशा रखता हूं अपने आप को। ये आप बहुत सारे कोड पढ़ेंगे गूगल के ऊपर तो उसमें ये देखेंगे कि वहां पे हमेशा पॉजिटिविटी की बात होती है। इन एवरी सिचुएशन का मतलब होता है कई बार ऐसा नहीं कि हमेशा आप लाइफ में पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव भी बहुत सारी चीजें होती है। तो वहाँ नेगेटिव में ये देखना है कि व्हाट्स रॉन्ग, उसमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चीजें मिल रही है कहने की। यू डोंट हैव टू डिसअपॉइंटेड योरसेल्फ कि नहीं हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं कहने की। तो वो चीजों का ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहें और वही आगे बढ़ते हैं कहने की, जो सीखते हैं। एंड ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ये सबसे टॉप में होना चाहिए। अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान दें। हेल्थ, आप कुछ भी करें, वर्कआउट करें, जो आपको अच्छा लगता है, आप हाफ एन आवर जिस बॉडी से आप पूरे दिन, जिस माइंड से आप पूरे दिन काम लेने वाले हो, उनके पे हाफ एन आवर, एन आवर आपको स्पेंड करना बनता है। आप वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जिम कर लें, जो भी आपकी फिजिबिलिटी में आता है जरूर करें, क्योंकि हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कहने की। सो आई होप कि यू आर क्लियर कि एक ये सारी क्वालिटी एंटरप्रेन्योर में होती हैं कहीं ना कहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं डिस्कस करने को। बट ये है कि ये बेसिक चीजें हैं जो बेसिकली ये मेरी नेचुरल चीजें हैं, जो बेसिकली मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा पावर कह सकते हो कहीं की। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग गाइस। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचेंगे कि नहीं ठीक है, यूजुअली कोई भी चीज आपने दिखना कभी भी कि कोई भी चीज जो आसान से मिलती है वो रुकती नहीं, लेकिन जब आप उसे मेहनत करके अचीव करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, एंड दिस सस्टेन। तो ये जो चीज है आज मैं जो आप लोगों को बताया बेसिकली कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल डूइंग अ जॉब इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर, बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर एंड वर्क लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। सो अभी क्या है कि आज इससे एक तो छोटा सा चीज मैंने आपको अपने बारे में बताया कि आई ऑलरेडी यू नो कि दैट आई हैव बीन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 10 years, पर्टिनिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एंड 2011 में मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया था। आई हैव डन एन एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस इन 2009 आई एम पास आउट। सो दीज आर दी थिंग्स फॉर द एंटरप्रेन्योर। मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताया, मेरी क्या यूएसपी वो बताया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डेफिनेटली आई एम नॉट अवेयर कि आपके सेशन के अंदर ये एडेड है या नहीं है कहीं ना कहीं, बट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डेफिनेटली आपके पास गूगल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डली हुई है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेट हो रही है। बट थोड़ा सा अपने एक लेमन टर्म में जो एक आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा इसमें क्या आपकी करियर अपॉर्चुनिटी है। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग।
एक बहुत सिंपल वर्ड्स में जो आप लोग सब भी जानते हो कि डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली अ ऑनलाइन मार्केटिंग विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब यहाँ पे एक आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो कि व्हेन इंटरनेट केम इन इंडिया, कैन रेज द हैंड। व्हेन इंटरनेट केम इन इंडिया, इन विच ईयर इंटरनेट केम इन इंडिया? अगर आप जानते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड, जो जानते हैं कि व्हेन इंटरनेट केम इन इंडिया। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली इंटरनेट की बात करेंगे। शुभम अग्रवाल, शुभम अग्रवाल knows when internet came in India. Yes, Shubham, tell me. Sir, in the year 1995. Oh wow, it's very nice. Great Shubham, great, very nice. Yes, 1995. Yes, अगर हम डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इंटरनेट के बारे में जानना, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की इंटरनेट इंडिया में कब आया और डिजिटल की चीजों कहाँ से हम किस तरह से ट्रैक करके मतलब कहीं ना कहीं पहुंचे उस तरीके से। वैसे तो ये 1986 में आ गया था, लेकिन दैट वाज ओनली द अवेलेबल फॉर द एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी, बट पब्लिकली इट वाज अवेलेबल फॉर 1995। एनीबडी नोज कि व्हाट इज द अप्रोक्स पॉपुलेशन यूज द इंटरनेट एज ऑफ डेट ऑफ 2020? इंडिया में क्या पॉपुलेशंस हैं, जो पॉपुलेशंस है उसे कितने % इंटरनेट यूजर हैं, एक्टिव इंटरनेट यूजर कितने हैं? आप जान के सरप्राइज होंगे, बट इफ एनीबडी नोज देन कैन रेज द हैंड एंड टेल। 780 million users are the active user on the internet. It's almost 50 to 54% of total population. So you can easily imagine कि what is going to be the scope of digital marketing if this much of the population is on a internet as an active user. चलिए एक बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, फेसबुक के बारे में सभी को पता होगा कहीं ना कहीं, राइट? तो अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो कैन एनीबडी टेल, जिनको पता हो कहीं ना कहीं कि फेसबुक व्हेन फेसबुक केम? शुभम, यू आर रेजिंग योर हैंड। In the year 2004, sir. Oh wow, you are having the knowledge, Shubham. Nice, very good. So these are the basically I wanted to check कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये कुछ चीजें ऐसी हैं, आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, डेफिनेटली यू शुड सर्च एंड यू शुड नो कि कभी भी आपको ये नॉलेज हो सकती है, कभी भी आप किसी इंटरव्यू में, किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस बेसिक क्वेश्चंस का प्रिपरेशन जरूर करें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक एमडी ये चेक करना चाहता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में एक इंटरव्यू देने आए हो तो आपको क्या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, व्हाट यू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बेसिक चीजें होती हैं जो आप गूगल के ऊपर निकाल के आप उसे स्टडी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और उसे नॉलेज के लिए अपने पास रख सकते हैं। देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग में आप जाएं या नहीं जाएं, लेकिन आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन, 54% पॉपुलेशन अगर हमारे इंटरनेट पे एक्टिव यूजर है तो कितना आपको रिक्वायरमेंट है अपने आप को अपग्रेड करने की। आप अगर किसी अदर वर्टिकल में भी जाते हैं तो भी वहां पे आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए ही चाहिए कहीं ना कहीं। कितनी इस तरह की चीजों को इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ ये करूंगा कि व्हाट इज बेसिकली टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखो, आप लोगों के पास क्या है कि डेफिनेटली इंटरनेट है, आपके स्टडी में शायद से एडेड है। आई थिंक मैं एक बार जब आया था आपके पास, आपके कॉलेज एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, तो उसमें भी शायद से मुझे आई थिंक आई वाज इन्फॉर्म्ड लिटिल बिट, आई एम रिकॉलिंग कि द डिजिटल मार्केटिंग चैप्टर वाज एडेड। बट टूल्स की अगर बात करते हैं तो टूल्स जो हैं वो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप क्या अगर टूल्स कोई बता सकता है अगर आप में से, तो बताएं कि व्हाट इज द टूल्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, क्या टूल्स यूज किए जाते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, टूल्स के बारे में क्या टूल्स यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो अगर बता सकते हैं, थोड़ी हाईलाइट डाल सकते हैं तो अदरवाइज मैं मूव करूंगा कहने की। ठीक है सर, गूगल एड्स सर। ओके, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। ओके सर मोस्टली तो सर यही पॉपुलर है, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब कुछ भी खोलते हैं तो वहाँ पे गूगल ऐड और फेसबुक ऐड ही आते हैं। Yes, absolutely. It is a answer, but I will just add more tools basically, जो थोड़ा सा आप लोगों को मैं नॉलेज के लिए करूंगा कहने की। थैंक यू शुभम। बेसिकली टूल्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आप लोगों ने SEO के बारे में सुना होगा कहने की। SEO जो है बेसिकली स्टैंड्स फॉर
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये एक आप उसे एक टूल्स कह सकते हो, एक डिजिटल मार्केटिंग का वन ऑफ द इफेक्टिव टूल्स कह सकते हो, जहाँ पे एक टेक्निक यूज होती है जहाँ पे यू आर ब्रिंगिंग द ट्रैफिक टू द वेबसाइट। ये एक बहुत बड़ा हेल्पफुल टूल है कहीं इन चीजों को लेकर, ठीक है। एक आज की डेट में आपने सोशल मीडिया का सुना होगा कहीं कि सोशल मीडिया में दो तरह की चीजें होती हैं जो आपने मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कहीं कि एसएमओ और एसएमओ। एसईओ एसएमओ में क्या, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कहीं कि सोशल मीडिया में जैसे आप फेसबुक देख रहे हो, लिंक्डइन देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, पिंटरेस्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि एसएमओ इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन में यू आर मेकिंग द पीपल अवेयरनेस के लिए आप कैंपेन चला रहे हैं, कहीं की अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं, आप ब्लॉगिंग चला रहे हैं, कुछ अगर आपको रीच बढ़ानी है, जैसे आप देखते हो बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे बने हुए हैं, वहां पे आप कोई पोस्ट डालते हो, इजिली बेसिस पे आपके उसकी जो आपकी व्यूअरशिप है वो बढ़ जाती है, कहने की इंगेज कर रहे हो कस्टमर को, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जितने सारे टूल्स मैंने बताए कहने की। एसएमएम में क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जैसा भी शुभम भी बोल रहे थे कि फेसबुक एड्स, तो एसएमएम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि पेड कैंपेन चलाते हैं, इसमें आप पे पर क्लिक पे करते हो कहने की, और पेड कैंपेन चलाते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक अट्रैक्टिव एड होती है, यहाँ एक रेवेन्यू परस्पेक्टिव से ये एड चला रहे कहने की आप, जहाँ से आप एक क्लिकिंग बढ़ानी है या फिर आपको कोई डाउनलोड्स करवाने हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप कर रहे हैं कहने की। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे पेपर क्लिक की बात कर रहे थे, जैसे हमने आपको इसमें सोशल मीडिया में बता दिया। एक होता है हमारा एससीएम सोशल, दैट इज कॉल्ड है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग के जो टूल्स हैं, सर्च इंजन जो है बेसिकली वो आपको पता है कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं। वहां पे जैसे कि आपको पेड कैंपेन चलानी है ताकि फॉर द इमीडिएट रिजल्ट्स, तो वो आप एससीएम के थ्रू चलाते हैं। तो दीज आर द टूल्स बेसिकली यूज। एससीओ है, एसएमओ है, एससीएम है, एसएमएम है, पेपर क्लिक मैंने बताया। एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग भी पहले यूज होता था, आज भी यूज हो रहा है एफिलिएट मार्केटिंग कहीं नहीं, जहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में शायद आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा कहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग इज द टूल्स जहाँ पे आप पहले देखते थे कि कहीं पे इसको फॉरवर्ड किया, किसी ने फॉरवर्ड किया और किसी ने उस पर लिंक करके कोई अगर कोई से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसे वो कमीशन मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए काइंड ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये थोड़ा सा पुराना, क्योंकि आपको लोग डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसको फॉरवर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई चीज चाहिए आप गूगल में जाकर सर्च कर रहे हो कहीं की, और आपको इमीडिएटली फाइंड आउट कर रहे हो, आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। सो दीज आर द टूल्स। एसईओ की बात की मैंने, एसईओ जो आपकी जो क्या कहते हैं, एसईओ की बात करी मैंने आपकी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए 4S। आपको एक 4S की तरह भी इसको आप मान सकते हो कि एसईओ हो गया, एससीएम हो गया, एसएमओ हो गया और एसएमएम हो गया। तो ये 4S भी होता है डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स के अंदर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है मैंने कहने की इसके बारे में। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा और भी गूगल वगैरह सर्च आउट कर सकते हो, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। थोड़ा सा ब्रीफ किया मैंने। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, बट इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या चीज है जिसके लिए हम इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग को हम दे रहे हैं कहने की। अगर आज के डेट में देखें तो डिजिटल मार्केटिंग इससे मैंने जो शुरुआत में जिक्र किया आप लोगों से कि 54% पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूजर है। तो डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है कनेक्टिंग विद द पोटेंशियल कस्टमर। अगर आप देखेंगे कि अगर फेसबुक के ऊपर देखिए तो आप यू कैन कनेक्ट द पोटेंशियल कस्टमर। आप अपने तरीके कस्टमर, मान लो कि आप कोई सपोज कि यू आर सेलिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट ले सकते हो कुछ भी, जैसे मान लो कि आप एफएमसीजी का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके टारगेटेड कस्टमर कौन है, एज ग्रुप कौन है, उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो, अपनी एड उनको दिखा सकते हो, उनसे सेल ले सकते हो कहने की। आप रियल एस्टेट की एड देखते हो फेसबुक के ऊपर, तो आप कनेक्टिंग दी पोटेंशियल कर बेटर रीच है कहने की। बट ऑब्वियसली बात है कैन ट्रैक दी क्लिक एंड रिस्पॉन्स है। यहाँ पे क्या है कि एक इमीडिएट बेसिस पे, जैसे मान लो कि यू आर एडवर्ड के थ्रू कैंपेन कर रहे हैं तो आप इमीडिएट बेसिस पे आपको उसके रिस्पॉन्स को इमीडिएटली ट्रैक कर सकते हो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या मतलब चीजें आ रही है कहने की। अभी आप अगर आप प्रिंट में है तो प्रिंट में अब प्रिंट की एड को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, रेडियो की एड को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। मतलब उसमें कितना रिस्पॉन्स आया, क्या रिस्पॉन्स आया, वो आप ट्रैक नहीं, बट यहाँ पे डिजिटल में हर तरह की चीजों को आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे हाई कन्वर्जन रेट है कहने की। आप देख रहे हो फेसबुक के ऊपर यूजर कितने आप आज की डेट में है कहने की। तो वहां पे आप जब एड चलाते हो डेफिनेटली यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स। गूगल के ऊपर हर बंदे को कुछ भी चाहिए सर्च करने, गूगल के ऊपर जाए, वहां पे एड कैंपेन चलाएंगे, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द बिजनेस। सो रिटर्न सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आप जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करें, जो भी कंपनी को आप अप्रोच करेंगे, आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं कहने की। अब जिस भी आप डेफिनेटली यू आर आस्किंग एनी ऑफ द कंपनी डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग, तो वो पूछती है कि यार मैं ठीक है आई एम गोइंग टू, अभी आपको सारे जब प्रैक्टिकल फेज में आएंगे तो कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट किए होंगे, शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछते हैं कि अगर मैं आपको
आई एम गिविंग द बजट ऑफ द 5 लाख रुपीज पर मंथ, आप उसमें मेरे को क्या रिटर्न निकाल के दोगे, कितनी लीड्स निकाल के दोगे? तो यू कैन इजिली इवेल्युएट, यू कैन इजिली कमिट. So that is basically the importance of the digital marketing, जहाँ पे importance डे आफ्टर डे बनते हैं. बिजनेस ग्रो हो रही है, बिजनेस बढ़ रही है. आज की डेट में आप देखो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिनके पास डिजिटल का प्लेटफॉर्म वो यूज नहीं कर रहे हैं. उन्होंने अपने बजट को कट शॉर्ट करके, अगर देखेंगे तो प्रिंट का बजट को कट शॉर्ट कर दिया, रेडियो के बजट को कट शॉर्ट कर दिया, और वो दे आर पुटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट आरओआई हमें मिल रही है. क्यों? क्योंकि वहां पे ये भी देख सकते हैं आप, जब अपनी एड बंद करना चाहे आप एड बंद कर सकते हैं. रियल टाइम रिपोर्टिंग है ये, जस्ट आप इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं कि हाँ कितने मेरे क्लिक्स है, कितने मेरे बैलेंस लेफ्ट है, कितने मेरे को लोगों ने देखा है. वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं आप यहाँ से दैट द इम्पोर्टेंसी बेसिकली है, यू कैन अंडरस्टैंड. इकोनॉमिकल है कहीं ना कहीं. अगर एक क्लिक का प्राइस अगर देखें तो स्टार्टिंग हो जाता है आपके 2 रुपीज से, 4 रुपीज से, 10 रुपीज से, आपके एज पर कीवर्ड्स के ऊपर वो आपके क्लिकिंग के प्राइस होते हैं. यानी कि गूगल के ऊपर भी वही होता है कि 30 रुपीज, 40 रुपीज लेकर 100 रुपीज, जिस तरह के कीवर्ड्स है उस तरह की प्राइसिंग होती है कहीं की. तो ये सारी जो इम्पोर्टेंसी है जो आज बिजनेस के अंदर है, जो आज बिजनेस को इंक्रीज करने में, स्केल अप करने में, जो बिजनेस स्केल अप हो रहे हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. क्योंकि लोग, पीपल आर ऑन ए फोन, पीपल आर ऑन ए गूगल, कुछ भी चाहिए सर्च करने के लिए वो है. फेसबुक एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड बताने वाला हूं, आप लोगों को शायद पता भी होगा, रीटारगेटिंग. आज आप लोग सोचते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और जो गूगल पे सर्च करते हैं और वही चीज आपको उसी से रिलेटेड, उसी बिहेवियर से रिलेटेड आपको एड्स दिखती है. जैसे मान लो सपोजिंगली आपने फेसबुक खोला तो आपने जो गूगल पे सर्च किया उसी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड रीटारगेटिंग. तो ये बहुत इफेक्टिव टूल है. यहाँ पे क्या है कि आप उस बिहेवियर को समझते हुए टूल्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे रीटारगेटिंग कर पा रहे हैं कहीं, और रीटारगेटिंग के थ्रू आप बिजनेस काफी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं. तो ये सारी यूएस मैंने बताई, सारी चीजें बताई, कहीं ना कहीं आपको ट्रैकिंग बताया, कन्वर्जन रेट बताया, कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी एक, मतलब इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अगर कोई एक स्मॉल स्टार्टअप है वो भी डिजिटल कर सकता है, एक बड़ी कंपनी वो तो डिजिटल कर ही नहीं. तो ऐसा किसी के लिए बात नहीं है कि नहीं यार आप नहीं कर सकते हो. आपका कोई भी एक्सपेंसिव बजट है, पुट द इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट दिया है. आज की डेट में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक सबसे बड़ी मेजर यूएसपी टूल की अगर बात कर रहा हूँ तो इसका ग्लोबली, आज आप यहाँ बैठे हो अपना बिजनेस स्केल अप करना चाहते हो ग्लोबली, आप कैन डू द ग्लोबली बिजनेस थ्रू दी. आपको ऐसे कुछ जरूरत नहीं है कि आप फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू लेके आए. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ बैठे हैं और बेचे वहां से रहे कहीं की. आप अमेजन का एग्जांपल देख लीजिए कहीं की. व्हाट इज द बेसिकली द स्ट्रेंथ, आप यहाँ पे है प्रोडक्ट, आप कहीं से भी आप उसको नेशनल लेवल पे सेल आउट कर सकते हैं कहीं की. सो दिस आर द बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में ये बोलूंगा. देखो डिजिटल मार्केटिंग का सेशन लेने का सिर्फ रीजन ये नहीं था कि आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पे जो मैंने आपको बात बताई उससे रिलेटेड ये नहीं था कि यू कैन ओनली मेक द करियर इन डिजिटल मार्केटिंग. नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में ही करियर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर इज बूमिंग, फाइनेंशियल सेक्टर इज बूमिंग, रियल एस्टेट इज अगेन अ वेरी अपर साइड. लेकिन डिजिटल की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह पड़ेगी. एक होती है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना, एक होता है कि डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज भी चाहिए आपको. उसकी कंपनी में जाते हैं डेफिनेटली आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अदर में भी वर्टिकल में भी आपको अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. सो दीज आर द थिंग्स समहाउ. अभी जैसे स्टूडेंट्स, मेरे को जैसा लगता है कि आई वाज जस्ट इन्फॉर्म्ड कि दैट बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट आर सिटिंग इन द सेशन. सो आप अभी जैसे अभी कोर्सेज चल रहे हैं, टाइम है आपके पास. अभी बहुत सारे इंटर्नशिप के कोर्सेज होते हैं, कुछ लोग पेड करते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कहीं की. तो आप वो इंटर्नशिप कर सकते हैं 1-2 महीने के कहीं ना कहीं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन के थ्रू सिखाते हैं, आप वहाँ सीख सकते हो, आप नॉलेज कर सकते हो कहीं ना कहीं. पर्टिनेक्स इज ऑल्सो स्टार्टेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं. अभी तक हमने जितने भी, आप हमारे पेजेस पे देखोगे जितने भी बच्चे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे ने कंपनी में प्लेसमेंट अपने आप लिए है, और कुछ लोगों को कंपनी ने हेल्प आउट करी है, और कुछ लोगों को कंपनी ने रिटेन भी किया है कहीं की. तो आप यहाँ से करें, कहीं और से करें, बट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 2 महीने का है, अफोर्डेबल कोर्स है, बहुत पैसे नहीं खर्च होते हैं कहीं ना कहीं करने के लिए, लेकिन नॉलेज इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उससे पैसे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अगर पैसे बहुत कम लग रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर दी some digital marketing internship and course. So that is all about the session of the today. Now I want
कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी, जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, डिजिटल मार्केटिंग में करियर की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी को स्पेशलाइजेशन लेने में कंफ्यूजन हो रहे हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए, कई बार ये होता है कहीं ना कहीं। ये मेरे साथ बहुत हुआ था कहीं ना कहीं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी कि जैसे घर पे लगता है लोगों को, जैसे मम्मा थी मेरी, तो मुझे बोला था कि यू शुड टेक द फाइनेंस, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत दौर है भाग है। लेकिन मुझे पता था कि आई एम जस्ट वेरी मच एफिशिएंट इन इंटरेक्टिंग विद द पीपल, मुझे अच्छा लगता है बात करने में। तो आई ऑप्टेड विद मार्केटिंग एज ए मेजर, एंड आई जब मैंने लिया तो डेफिनेटली आई परफॉर्म वेल, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे मैं कहाँ पे बेटर कर सकता हूँ, वेयर आई कैन डू दी, वेयर आई कैन परफॉर्म बेटर। सो एंड मैंने उसमें प्रूव भी किया कि नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप वहां पे जा रहे हो तो आपको दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं कहने की, आपको देखो उस चीज से आपको पीछे नहीं हटा, आपको अपने इंटरेस्ट चेक करने कहाँ पे इंटरेस्ट है। और एनीथिंग रिलेटेड अगर कोई बच्चों के मन में क्वेश्चन है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो any of the student wanted to ask any of the questions? Yes, sir. Thank you so much. It was indeed a very insightful session. So there are so many confusions which is there. I mean, which always stays in our mind. We are a little confused. I hope that today's session definitely was something that it has cleared some of the doubts from the students. And dear students, if you have anything you want to discuss, you want to speak, you want to ask, you are welcome. You can ask. Sir is here to answer you. Thank you so much, students. I just raise your hand and please ask the question in case it is there. सर एक्चुअली मैंने ऑनलाइन पे देखा था, अभी थोड़े टाइम पहले मेरा फ्रेंड जो है उसने क्लासेस शुरू करी थी, ऑनलाइन क्लासेस, राइट? Okay. So he was advertising on various platforms. एंड सर मेरे इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया गूगल एड्स और जो फेसबुक एड्स है, जो उनकी वर्किंग है वो डिफरेंट है कुछ, बिकॉज उसने जब इंस्टाग्राम पे अपना ऐड दिया था तो उसके चार्जेस अलग थे, गूगल पे चार्जेस अलग हैं एंड फेसबुक के चार्जेस अलग हैं। तो इनका कुछ, इनके जो प्राइस वेरिएशन है सर वो क्यों है? ओके, शुभम, इसमें जो क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर आप फेसबुक की बात करते हो तो फेसबुक इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी, ठीक है? तो वो उनका जो वर्किंग करने का जो पैटर्न है वो अलग है कहीं ना कहीं। वहां पे आज भी उनका क्लिक रेट देखते हैं तो बहुत कम है, क्योंकि दे आर जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज देयर ऑडियंस। आज आप देखोगे लीड जनरेट करने की बात करते हैं तो वो सबसे अफोर्डेबल लीड आपको फेसबुक की पड़ती है कहीं ना कहीं। तो इट इज देयर पॉलिसी, अगर वो चाहे तो वो क्लिक का रेट 30 रुपए भी कर सकते हैं एंड स्टिल कस्टमर विल पे। गूगल क्या है कि गूगल के ऊपर आज बहुत पुरानी टाइम की प्रेजेंस है। आज गूगल को पता है कि आज मैं इतने टाइम से हूँ, आई एम लीडिंग दी इवन इन सर्च इंजन। जैसा मैंने बताया सर्च इंजन में वन ऑफ द लीडिंग है, उसके सामने कोई भी नहीं है। वैसे बिंग भी है, बहुत सारी याहू भी है, बट आप देखते हो कि आपको कुछ भी चाहिए होगा आप गूगल पे सर्च करते हो। तो ये उनकी क्लिक्स के प्राइस हैं, वहां बिडिंग्स होती हैं जो गूगल के ऊपर आप देखते होगे। कई बार कीवर्ड कॉम्पिटिशन होता है, अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आपको पता होगा कीवर्ड कॉम्पिटिशन होते हैं कहीं की। तो ये उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, अपने वर्किंग करने का पैटर्न है कहीं ना कहीं। बहुत ऐसी भी साइट्स हैं जहां पे आपको फ्री में लीड्स निकल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे पेड निकलती है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज देयर पॉलिसी कि दे आर डिजाइनिंग द थिंग्स। हाँ, बट गूगल इज ऑल टाइम द एक्सपेंसिव वन। I hope you are clear with the answer, Subham. Yeah, anything else? Yes, sir. And sir, इनका जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है सबका कॉमन रहता है या कुछ अलग रहता है? इसमें अलग रहते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ी नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको गूगल के ऊपर प्रमोशन कैसे करते हैं, फेसबुक के ऊपर कैसे करते हैं, तो थोड़ी वर्किंग सभी की डिफरेंट है कहीं ना कहीं। पैटर्न वही है, क्लिक्स के पैटर्न है, बट वर्किंग डिफरेंट है। एंड इसमें सर गूगल जो है, गूगल और फेसबुक दोनों जो है गूगल एड्स के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, मैंने ऑनलाइन देखा था, एंड वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर उनका कुछ बेनिफिट होता है करने के लिए एज अ स्टूडेंट, या अगर हम उस चीज को हम एज अ पार्ट टाइम लेना चाहें तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो हमेशा सुबह एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज अगर आप एडिशनल कर रहे हो अपने लाइफ में, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। दैट विल बी अगेन अ प्रोडक्टिव थिंग। हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रखें। आपकी हमेशा जो स्किल है वो एक अलग लेवल पे परफॉर्म करेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यू कैन गो अहेड विद दैट। आप एज ए पार्ट इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव है। कल के डेट में आप किसी कंपनी का आप एज ए फ्रीलांसर भी ऑर्डर ले सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल।
दे कैन गिव यू द ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट। इवन कोई कंपनी अगर करानी है तो वो आपको एक ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट दे सकती है। आप अगर इसे अच्छा सीख के कर लेते हैं, उनके लिए लीड जनरेट करते हैं, तो दैट इज अगेन द वेरी गुड। अगर साइड बाय साइड आप करना चाहें, आपके पास समय है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। Anyone else? Bhavya. Yes, Bhavya, please. Hello. Yes, Bhavya Jain, tell me. Sir, I want to know about sir domain marketing. Okay. Sir, like sir, recently sir Google शायद sir I don't remember the country sir, I think ब्राजील थी सर, किसी ने सर गूगल के ब्राजील का डोमेन हायर कर लिया था। Okay. बट सर गूगल ने उसको विद इन अ सेकंड सर अपने आप से एक्वायर कर लिया विदाउट एनी नेगोशिएशन। बट Yes, सर yes. अगर किसी ने ऑलरेडी डोमेन ले लिया है तो सर उसका भी तो सर कुछ डिमांड बनती है ना सर चार्ज करने की। बट सर इस केस में क्यों नहीं हुआ था? देखो वो गूगल है, इतनी ही बोल सकता हूँ भव्य है, दैट इज अ गूगल की वो इस कंडीशन, और वो कोई भी कॉस्ट पे ले सकता है, आपको पता है कि नहीं की। सो इसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि इसने क्या किया, लेकिन हाँ ही कैन गिव एनीथिंग। अगर उस समय कोई भी अमाउंट मांगते तो वो देते कहीं नहीं। बट सर आई स्टडी अबाउट दिस सर, सर उसमें था कि मतलब उनको कोई पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उन्होंने सीधा ही उससे ग्रैब कर लिया सर वो। देखो कहीं ना कहीं कुछ हाँ एग्री कर रहा हूँ बात आपकी वर्ड से, कहीं ना कहीं ये हुआ था, न्यूज में भी सारी जगह सब जगह वायरल हुए थे ये चीजें कहीं ना कहीं। बट आई थिंक इसके ऊपर यही बोलूंगा कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गूगल है तो अब उसके अगर कोई और होता तो मैं बोलता कि चलो ठीक है उस केस में ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बट गूगल है तो वो जिस तरीके से वर्किंग आउट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। Actually, I have a question. Yes. Sir, what is the benefit of blogging in advertisement? Is there any benefit of blogging? Yes. ब्लॉगिंग के बहुत बेनिफिट है मनीषा, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि ब्लॉगिंग से बहुत लोग बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं। अगर आपने इसके वीडियोस अगर देखे होंगे यूट्यूब पे, तो अगर आपको जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं, जिसपे आपकी स्किल कहती है कि नहीं आई कैन जस्ट राइट अप ऑन दिस, एंड उससे बेनिफिटेड होता है कल के डेट में। अगर आपके ये ब्लॉगिंग होती है, उस पर आपने देखे होंगे कि ऐड चला सकते हैं, उस पर फिर आप प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ब्लॉगर्स को देखोगे तो अपने फेवरेट टॉपिक पे ब्लॉगिंग लिखते रहते हैं कल के डेट में, फिर उसके बाद रील लिंकिंग के थ्रू दे आर जस्ट अर्निंग अ लॉट्स ऑफ मनी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ब्लॉगिंग में जा सकते हो, यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन ब्लॉगर्स, यू कैन बी ए ब्लॉगर। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। इट इज अगेन अ करियर ओरिएंटेड, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग को अपना करियर बना लिया। मनीषा आपने देखा है कुछ वीडियो ब्लॉगिंग के ऊपर? Yes, sir. I have. One of my friend, she is doing blogging. She is a blogger. यस। सो अगर आपका कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, चीजें हैं, आप जो लेटेस्ट चीजों पे, जैसे अभी कुछ भी इलेक्शन से हो गया या फिर आपकी कोई भी चीज जो लेटेस्ट टॉपिक चल रही है उस पर अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए। और ब्लॉगिंग इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट मैं कहूँगा कि नहीं, अगर आपकी अगर इंटरेस्ट है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें जरूर आप अपना पोटेंशियल लगाएं, क्योंकि उसमें परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कहीं नहीं। मनीषा, आर यू क्लियर विद योर आंसर? So, 100%. Okay. Thank you. Okay. Yes. Tell me. सर जो फेसबुक पे एड्स हम देखते हैं, जैसे गूगल पे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें काफी डिफरेंट साइजेस के एड्स होते हैं, तो जो साइज है वो भी मैटर करता है पर क्लिक पे? साइजेस इन टर्म्स ऑफ किस तरह से शुभम पूछ रहे हो आप? साइजेस जैसे कोई स्क्वायर हो गया, राइट, कोई रेक्टेंगल में जिसकी लेंथ ज्यादा है, हाँ, या किसी की ब्रेड्थ ज्यादा है, तो सर साइज का जो होता है उसमें, तो वो भी पर क्लिक का कुछ रहता है या वो सबका सेम रहता है? सेम रहता है राजी, दैट इज सेम। एंड उसमें क्या होता है कि जो आप विड्थ देख रहे हो, जो चीजें देख रहे हो, वो बेसिकली कंटेंट का खेल होता है। अब जैसे क्या करते हैं ना, वो आप देखोगे कि जब आप गूगल एडवर्ड करोगे, आप शायद आपने मुझे लगता है गूगल एडवर्ड किया है, तो उसमें जो कंटेंट आप लिखते हो वही कंटेंट वहां पे आपको दिखता है। क्योंकि कंटेंट आप इस तरह से लिखते हो जो कि जो भी एक यूजर है जो वो सर्च कर रहा है वो कीवर्ड आपके मैच करे कहीं नहीं, तो वो उससे रिलेटेड है कहीं नहीं। अब जैसे टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, तो वो जो अगर देखेंगे जो पेड कैंपेन चल रही है उसमें आपका पहला लाइन ये होगा कहीं नहीं, नीचे लिखेंगे प्लेसमेंट ये वो, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, उनको कीवर्ड से मतलब है। हाँ, कीवर्ड के ऊपर जरूर क्लिकिंग का रेट डिफरेंट होता है। जो हॉट कीवर्ड होते हैं, जैसे अभी मान लो कि हम ट्रैवल की बात करते हैं, तो ट्रैवल में अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट्स इन दिल्ली एनसीआर डालता है तो वो उसकी डेफिनेटली क्लिक की कॉस्ट हाई होगी, क्योंकि वो हॉट कीवर्ड्स है। आप देखोगे कि जो एक आपको पता है कि एक पेड होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक इज कॉल्ड एसईओ एंड पेड इज कॉल्ड एससीएम, राइट? तो उसमें ये होता है कि अगर आप उससे फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ कीवर्ड्स के ऊपर डेफिनेटली आपके बजटिंग का फर्क पड़ता है। शुभम? यस सर, यस। इट्स ओके? यस सर। ओके, फाइन।
अपार्ट फ्रॉम डिजिटल, अगर किसी को करियर से रिलेटेड भी कुछ पूछना है, कहीं पे अटक रहे हैं, चीजें लग रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है कि हम बीबीए के बाद सर क्या करें नहीं करें, जो भी किसी को क्वेरी लग रही है तो वो पूछ सकता है कहीं ना कहीं। आई विल ट्राई टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन कि अगर कुछ आप लोगों को मैं काउंसिल कर पाऊँ वहां पे भी, और अगर डिजिटल से कुछ और क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ से आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. I Please know tell this me. is one question which comes in every student's mind. Yes. When it comes to the specialization, either for BBA or MBA, we are little scared of taking marketing profile. हम डर से जाते हैं कि ये बहुत काम है और although it is marketing, but हमें एक impression मिलती है कि मेरे को तो यार सेल्स करवाएंगे यार, यहाँ नहीं जाना है. और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केटिंग की रियल प्रोफाइल बड़ी अच्छी, जो एक्चुअल काम मार्केटिंग का है दैट इज डिफरेंट वर्क, तो बच्चे उसमें एक्सपर्ट होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल, जो आप अगर ऑप्शन की बात करें, जॉब की बात करें, तो इनिशियल जॉब जनरली सेल्स का मिलता है और इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं, ऑफिस को ज्वाइन नहीं करते हैं. पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट है किसी भी कंपनी का, और जिसमें रियल, जिसे कहते हैं कि एनालिसिस और साइंटिफिक इनपुट आता है. तो ये एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, खासकर इंडिया में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अगर हमने मार्केटिंग ली तो हमें वो कह देंगे जाओ जूते बेच करके आओ या ये पेन बेच करके आओ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. तो थोड़ा इसमें गाइड कीजिए, क्या वाकई हमारा ये डर सही है, और अगर ये डर है तो फिर हम चेंज क्यों नहीं करते, और अगर ये हम गलत डर रहे तो इस डर से कैसे हम ऊपर आए. ये एक बहुत बड़ा वो है डाउट. बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने डॉक्टर नविता रेज किया है, और ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस होंगे, वो पूछ नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं. एंड मैंने जैसा शेयर किया कि बेसिकली मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था, और यूजुअली बहुत तरह का, जब आप इस टेन्योर में आते हैं, जब इस समय में आते हैं, तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं. एक तो इंडिविजुअल प्रेशर होता है कि क्या ले नहीं ले, कहाँ पे अपना करियर बनाए, और एक तो आपको घर से भी प्रेशर होता है कि यार आप कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या करोगे सेल्स के अंदर. बट मैं इस कॉन्टेक्स्ट में यही बोलूंगा कि अगर आप ये सेल्स और मार्केटिंग की प्रोफाइल, एक तो थोड़ी अलग है कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग की प्रोफाइल, एक तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं. तो सेल्स की प्रोफाइल से अगर डर रहे हो तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं. अगर सबसे पहली बात तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना. मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ सेल्स लेने के लिए, ऐसा नहीं कि आपका फाइनेंस में अपनी अच्छी हाथ है तो आप फाइनेंस लो, लेकिन इस फोर्स में मत लो कि सेल्स अच्छा नहीं है इसलिए मैं फाइनेंस ले रहा हूं. ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं करें आप, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में हमेशा नुकसान देगा. आप फाइनेंस में अच्छे हैं तो फाइनेंस आप लें, लेकिन इसलिए फाइनेंस नहीं ले कि आप सेल्स नहीं करना चाहते. सेल्स इटसेल्फ अ सुपर एक्साइटिंग जॉब, आई कैन सिंपली टेल. अगर आप करना चाहें तो इससे बेटर कोई जॉब नहीं है, इट्स माई वर्ड. लेकिन इसके लिए आपको डेफिनेटली कोई भी चीज आसान नहीं है. अगर आप फाइनेंस लेते हैं, एचआर लेते हैं, मार्केटिंग लेते हैं, आप कोई चीज आसान नहीं है, आपको हर जगह काम करना है. लेकिन एक माइंडसेट है हमारा कि सेल्स में बहुत इधर जाना है उधर जाना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द पीपल, इससे बेटर जॉब क्या. अगर आप में क्वालिटी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, आप इंजॉय करते हो कंपनी को, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ सेल्स. वहां पे आप कर लो, एचआर ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. आप रिग्रेट करोगे कहीं नहीं, यार मैंने क्या कर लिया. फिर वापस बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि पहले तो फाइनेंस में उन्होंने एमबीए कर लिया एंड बाद में वापस आके मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं. क्यों? उनको वहां पे लग ही नहीं रहा है, उनको वहां पे वो दे आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल देयर. सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अपने आप को एक सेल्फ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबिलिटी है. अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है मैं यहाँ पे अर्निंग कर सकता हूँ, सेल्स में कर सकता हूँ. मार्केटिंग की प्रोफाइल एक अलग प्रोफाइल होती है कि ऑल टुगेदर, जहाँ पे आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, लीड्स आपकी मैनेजमेंट होती है, सेल्स सपोर्ट आता है उसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर. लेकिन इसके लिए भी आपको एक टाइम पे इनिशियल लेवल पे थोड़ी सेल्स करनी पड़ेगी. आप सीखेंगे कैसे? मार्केटिंग में डायरेक्ट आने के लिए आपको सेल्स समझना पड़ेगा. आप प्लानिंग कैसे बनाएंगे जब आपको सेल्स का पता ही नहीं कि सेल्स होता कैसे? तो प्लानिंग के लिए भी आपको सेल्स करनी पड़ेगी. मार्केटिंग की जॉब भी चाहिए आपको, उसमें भी आपको सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कहीं की. सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. का मतलब सेल्स ही करना है, बिल्कुल कहीं पे कंफ्यूज नहीं हो. और मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द मेकिंग द स्ट्रेटजी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है. लीड सपोर्ट दे दिया हमने, प्लानिंग कर ली, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई.
तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, कॉन्फिडेंट रहें। हाँ, लेकिन आपने आपसे स्केर्ड नहीं रहे। बट मैंने एक चीज बात बोली थी, जो काम करे कॉन्फिडेंस से करे। ये नहीं कि हमने ले लिया और डर के काम कर रहे हैं, आप कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपनी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग ली है तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यस आई विल प्रूव इन मार्केटिंग, आई हैव टेकन माई सेल्फ एज अ मार्केटिंग, I was very I'm a math honors student and taken as a finance as a minor, but me I was just कि मेरा हमेशा से मन था कि I just wanted to be a कि marketing guy। वहां पे मुझे लोगों से I can't sit and I have a lots of meeting in the entire day, लोगों से बातें करना, चीजें करना। तो ये सेल्फ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो सेल्स से बिल्कुल नहीं डरे, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेल्स के अंदर, एनालिसिस करें कि हाँ ये चीजें, कहीं भी सेल्स में जाएंगे कंपटीशन आएगा, लोग आएंगे। आपको शुरुआत के अंदर इतना इजी कोई भी चीज नहीं है कि आप गए सेल्स हो गई, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यू हैव टू स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट है। आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्मॉल थिंग्स विद यू कि सीखने के लिए नहीं, अपनी काम करने के लिए मैंने कोल्ड कॉल किया हुआ है। आई हैव डन द कोल्ड कॉल इन अ 40 की टेम्परेचर एंड आई एंजॉयड। जब मैं एंजॉय कर रहा था परफॉर्मेंस आ रही थी। लेकिन जिस दिन आप ये सोचोगे यार हु इज डूइंग दिस सेल्स आफ्टर द MBA, आई एम जस्ट डूइंग द लाइक दिस, आई एम डूइंग द कोल्ड कॉल इन द मार्केट। अगर आपने एग्जांपल देखना है तो आप देखो, IIMS अहमदाबाद के बच्चों ने भी इंटर्नशिप को सीखने के लिए अम्ब्रेला के अंदर भी वॉचेस बेचे हैं स्ट्रीट पे। ओला के जो फाउंडर हैं वो ब्राउचर बांटते थे खड़े होकर रोड पे, आज वो देखो कहाँ है। सो वो अपने प्रोफेशन से प्यार करते थे, वो करते थे कि नहीं यार ये बहुत ही एग्रेसिव प्रोफेशन है कहीं ना कहीं। आप जाके ओला के फाउंडर की आप हिस्ट्री चेक करना, यू विल गेट टू नो कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दे आर दी IITians, आप देखो कैसे उन्होंने किया है। IIMS अहमदाबाद का ये स्टोरी आप उठा के देखो कैसे उन्होंने करा है। सो माई अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग सेशन है, इसका मतलब ये नहीं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना लो। उसी तरह से मेरा सेशन करने का मतलब ये नहीं कि सेल्स में सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जब सब कुछ सेल करेगा तो फाइनेंस कौन संभालेगा और HR कौन संभालेगा? एवरीवन। तो हर बंदे के अंदर एक अपनी इंडिविजुअल स्किल्स है जिसको रिकॉग्नाइज करने की रिक्वायरमेंट है एंड उस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है कि नहीं। वहां पे सेल्फ एनालिसिस करें, जो आपके टीचर है उनसे बात करें कि सर आपको क्या लगता है मेरे से, कि मेरे में क्या ऐसी क्वालिटी है कि मुझे क्या लेना चाहिए। दे विल गाइड यू, क्योंकि वो आपको कीप ऑन बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी आपके साथ में है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, ब्रदर है, पेरेंट्स हैं, फादर हैं, आप उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए कहने की, मेरी ये चीज स्किल है। आप एनालिसिस करें और डिसीजन खुद का लें, क्योंकि यू योरसेल्फ इज द वेरी एफिशिएंट इन टेकिंग द डिसीजन। आई होप कि आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट कि सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR जो है, HR अपने आप में बहुत ही अच्छा जॉब है, लेकिन आपकी स्किल्स कहती है डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द HR वर्क। Very lots of people have performed well in the HR segment. सेल्स के एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूंगा। ये सेल्स कभी भी आपकी, अगर बिजनेस मैनेजमेंट पे आप हो या आप किसी भी टूल में, सेल्स आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप फाइनेंस में भी हो, HR में भी हो। HR में भी एक रिक्रूटमेंट का पार्ट आता है, वहां पे भी आप कैंडिडेट को कन्विंस कर रहे हो कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, अगेन यू आर डूइंग अ सेल। तो सेल आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। यू हैव टू बी स्किल, वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एज ए करियर बनाना है, ये कैसे बनाना है, दैट यू हैव टू डू द सेल्फ एनालिसिस कि मैं किसमें बेस्ट हूं, किसमें बेटर हूं, किसमें बेटर कर पा रहा हूं। So Dr. Nevita, I hope I have just shared some of the things. Example. Yes sir, thank you sir. मैं यहीं पर ऐड करना चाहूंगी कि being head training and placement, what I am doing, I am just selling my students to different companies. Yes, absolutely. That's what I am doing it. तो इसके लिए मैं कॉल करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, but then what I am doing, I am doing my product, which is the graduate student from my college to the company. So sale is something which even I am doing, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि this is the toughest job in the college which I am doing, but still I am enjoying it. Still I am enjoying it. Absolutely. That's why I'm in a position to bring companies to support these students for placement or internship, whatever it is there. तो यही मैं भी सेल्स ही करती हूँ सर। और ये बच्चों को भी जब when they are going for, मैं कई बार क्लास में बोलती हूँ, when you are going for interview, in fact there you are selling your own candidature, you are selling your own profile, and the best you can sell, the best thing, the best
money you will get in the form of the salary. Yeah, तो जितना आप absolutely, absolutely. अच्छा अपने आप को आप सेल कर पा रहे हो उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी. सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस स्टेप. तो इसलिए मैंने पूछा था कि बच्चे थोड़े से ना हेजिटेंट हो जाते हैं. और अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें सर, वर्ड इज मार्केटिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. द Yes, वर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग, बट देन yes, वी आर सेलिंग प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये है. absolutely. सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. तो Yes, एनीथिंग absolutely. एल्स, Hmm. कोई बच्चे कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर. Good evening, Prince. Tell me. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम सेल्स की जो जॉब होती है या इंटर्नशिप्स जो भी है सर, उसमें हमें एक टारगेट दिया जाता है कि इस स्पेसिफिक टारगेट को हमने मंथ में कंप्लीट करना है. और सर उसमें प्रेशर बहुत होता है कि मतलब एक दिन में ये टारगेट होना ही होना है. और क्या, और सर ये भी होता है उसमें अगर टारगेट नहीं हो पाता सर किस रीज़न की वजह से, जैसे कि मतलब लोग नहीं पसंद करे प्रोडक्ट या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कंपनी वाले टारगेट दे देते हैं. और सर अगर टारगेट नहीं होते फिर बाद में वो ये भी थ्रेट होता है कि जॉब से निकल जाएंगे या वो हो जाएगा. सर ये सब पॉइंट पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत टफ जॉब है सेल्स की. प्रिंस, पहले अपने बारे में बताओ. Which course you are doing into right now? आई एम डूइंग BBA राइट नाउ. BBA last year. यस सर. मतलब you are about to मतलब complete, right? Yes sir, and I had have some experience about sales because I have done one internship Mm-hmm. and I have worked I have worked in family business too, so I do have some experience. Okay. तो आपने Yeah. सेल्स करी है मतलब कहीं पे ये चीज? Yes sir, बजाज फिनसर्व में करी है मैंने. बजाज फिनसर्व में करी है, ठीक है. हाँ. प्लीज देखो, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली ये क्वेश्चन आप लोग आपके ग्रुप से आया ये क्वेश्चन. तो आई एम अप्रिशिएटिंग योर क्वेश्चन. देखो ऐसा है कि जो चीज आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन टारगेट का प्रेशर तो होगा, बिल्कुल होगा. काम का प्रेशर होगा. देखो कंपनी कोई भी अगर आपको सैलरी दे रही है, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, तो डेफिनेटली दे विल बी अ प्रेशर. और वो प्रेशर आपको लेना चाहिए. वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस की शुरुआत वहीं से होती है. जिस दिन उसको आप एज ए हेडेक ले लोगे, यार मेरा बॉस डेली डंडा करता है कि मुझे वो सेल्स करके देना है, चीजें करके देनी है, एंड उस वे में जाना है, आप शायद अपना वो 100% नहीं दो. अपने आप से पूछना आप कि अगर आप अपना 100% दो. मैं आपको मैं अपने अपने बच्चे जो हमारे पास जो भी सेल्स लेवल पे है उनको मैं बोलता हूँ कि अगर आपने ऑनेस्टी से अपनी कॉन्फिडेंट के साथ अगर आपने अपना समय इस सेल्स के ऊपर दिया है तो आपको उस टारगेट का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं. वो टारगेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं. बहुत सारी कंपनी है सेल्स ओरिएंटेड, जैसे जस्ट डायल है, सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है. पॉलिसी बाजार है, सेल्स ओरिएंटेड कंपनी. यहाँ तो मतलब ये होता है कि आपने टारगेट कर भी लिया तो भी डंडा कर रहे हैं आपको कि और टारगेट करो. लेकिन क्या है कि वहां पे आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी उसी लेवल पे बढ़ जाती है. आप ये समझ के चले कि यू आर प्रिविलेज, यू आर गेटिंग द प्रेशर. और एक चीज, अच्छी कंपनियों के अंदर आपको कभी भी रेम्युनरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. यस, दे विल गिव यू 3 month टाइम एटलीस्ट, लेकिन प्रेशर देंगे कहीं नहीं. बट उससे आपको भागना नहीं है. आपको ये सोचना नहीं है कि नहीं यार इसमें पे हम कहाँ पे आ गए, कहाँ पे फंस गए, या मैं बीबीए करने के बाद एमबीए करने के बाद ये कंडीशन नहीं. जिस दिन आप वहां से निकलोगे उस दिन एक अलग लेवल पे आप लेके निकलोगे, एक अलग क्वालिटी लेके निकलोगे, एक अलग ही स्कोप आपके लिए ओपन हुआ कहीं नहीं. सो यू डोंट हैव टू स्केयर फ्रॉम दिस के प्रेशर आने दो. प्रेशर, लेट द प्रेशर कम, बट आप अपना काम अपनी ऑनेस्टी के साथ करें. आप अपना काम कॉन्फिडेंस से करें. आप अपना कंट्रीब्यूशन में कोई कमी नहीं रखें कि नहीं यार मैं तो ठीक है नहीं कर रहा यहाँ पे, आज ये बहुत प्रेशर है, ये चीजें हो गई, उसने ये बोल दिया, नहीं यार कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ. हाँ, आपको एक जगह पर डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो प्रोडक्ट की नॉलेज जरूर लें. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है सेल्स में, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, कई बार क्या होता है कि हम जैसे कहते हैं कि अब अगर फील्ड में उतर रहे हो, अगर यू आर गोइंग फॉर ए वॉर, तो अगर आपके पास अगर वॉर करने के लिए सारे अगर होंगे नहीं तो आप कैसे वॉर करोगे. तो आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज जरूरी है, आपकी क्लाइंट एनालिसिस बहुत जरूरी है. बहुत सेल्स के अंदर ये बेसिक चीज है. आप अपने क्लाइंट के बारे में एनालिसिस करके जाएं कि वो क्या करता है, क्या सोल्यूशन दोगे आप. कई बार क्या होता है हम पहुंच जाते हैं सेल्स के लिए, वी जस्ट रीच्ड, हम ठीक है सर आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम दिस सो एंड सो कंपनी, बट आपने उसकी रिक्वायरमेंट ऑब्जर्व करी नहीं. आप तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझने की रिक्वायरमेंट है. हाँ, बेसिक लेवल पे जहां पे सीख रहे हो वहां पे आप सीखोगे, लेकिन जो बेसिक लेवल पे जैसे आपको अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के जाओ, अपने प्रोडक्ट पे अपना होल्ड बना के जाओ. देखो आपका कस्टमर आपको वही जब सेल कन्वर्ट होती है तो आप देखना कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है.
यू विल बी स्टार्ट एंजॉइंग। आप प्रॉब्लम में तब तक हो प्रिंस जब तक कि आप वो सेल्स नहीं कर पाओ। जिस दिन आपने सेल्स किया ना, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। ये प्रेशर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रेशर। जब आपके पास सैलरी के साथ इंसेंटिव आएंगे ना, तो आपको लगेगा यार क्या बात, क्या 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 कह रहा क्या। अब हमारे बंदे जैसे महीने के अंदर एक अच्छे इंसेंटिव लेते हैं, 20,000 अर्न कर रहे हैं सिर्फ अपार्ट फ्रॉम सैलरी, तो दे आर जस्ट हैप्पी। लेकिन हाँ, पूरे टाइम पे होता है कहीं ना कहीं उनके मैनेजर उनको प्रेशर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। सो यू हैव टू वेरी क्लियर विद द थिंग। यहाँ पे हम यहीं पे फंसते हैं, हम अपने आप को पहले ही डीमोटिवेट कर लेंगे, यार ये क्या हो रहा है, सेल्स का प्रेशर है, मार्केट में जा रहा है, क्लाइंट नहीं सुन रहा है मेरी। ऐसे ही होता है ना, क्लाइंट नहीं सुन रहा है मेरी, क्लाइंट से सेल नहीं हो रही है, ऊपर से बॉस डंडा कर रहा है। तो आपको वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट है कि आपके प्रोसेस में कहां पे कमी है, वेयर आर द प्रोसेस इज कमिंग। क्या मैं सही से रीड नहीं कर पा रहा हूँ, या प्रोडक्ट सही से नहीं बेच पा रहा हूँ, या क्या। कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। आप फाइनेंशियल सेक्टर्स में आए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, चाहे ट्रैवल के पैकेज है, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं। आप प्रोडक्ट के नजरिए से देखो ना कहीं की, उसके बाद आप देखो जाके कहीं आपकी सेल होती है। जब सेल होगा तो आपको यही प्रेशर लगे यार कुछ भी नहीं है, और फिर आप वंस यू विल बी एडिक्टेड इन लिसनिंग योर बॉस। यार वो टारगेट कंप्लीट करो तो भी बोलते टारगेट नहीं है, अप्रिशिएशन आपको मिलेगी इस वाला। So Prince, I hope you just feeling something about the sales. Sir, I'm feeling motivated. Thank you for the answer. Thank you, Prince. Thank you. All the best for your future. Thank you, sir. Have a nice day. Same to you. Just to add to more, Prince, I'm happy that you have raised this question. One thing, beta, प्रेशर उसी को देते हैं जिसको पता होता है कि वो कर सकता है। बिल्कुल, जो नहीं कर सकते उसको प्रेशर नहीं देते हैं। तो आप पे अगर प्रेशर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं आपका अप्रोच, आपका कहीं तरीका कंपनी को पसंद आ रहा है और इसीलिए आप पे प्रेशर आ रहा है। क्योंकि उनको पता है एट द एंड ऑफ डे हर कंपनी चाहती है इसका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट पे ही तो आपको सब कुछ शेयर करती है। तो इसलिए अगर आप पे प्रेशर आ रहा है तो डोंट फील दैट वे, रादर यू हैव समथिंग, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग यू प्रेशर, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अभी तो एज है, अभी तो प्रेशर झेल सकते हैं, अभी तो इतना कोई नहीं है, अभी तो आप एक्सर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप सेल्स करो, बट देन यू कैन वर्क, यू कैन रियली पुट प्रेशर, आप एक्सर्ट कर सकते हैं बिकॉज यू आर वेरी यंग। और इसी एक्सर्शन, इसी प्रेशर बेरेंस के बाद जो आपकी पर्सनालिटी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। सो डोंट टेक दैट वे, बी वेरी पॉजिटिव। और जैसा कि सर ने कहा कि थिंक दैट यू आर एंटरप्रेन्योर, आप तो हालांकि फैमिली बिजनेस में हैं ही, तो आप ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर हैं, पर स्टिल अगर आप जॉब में हैं, अपने आप को मालिक समझेंगे और तब सोचेंगे तो चीजें कुछ और नजर आएंगी। तो इस तरीके से सोचिए और काम करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इंडीड, इट वाज अ वेरी गुड सेशन एंड आई एम श्योर द वे यू हैव डिलीवर्ड द टुडेज सब्जेक्ट, वो बिल्कुल आप बिल्कुल स्टूडेंट के लेवल पे आके डिस्कस किए हैं। उनकी प्रॉब्लम्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है शायद हम कभी समझ नहीं पाते हैं, तो वो उस लेवल पे उतर के आपने बात की है, उनकी प्रॉब्लम को समझा है, उस तरीके से डिस्कस भी किया है। और बच्चे भी कहीं खुल करके आए हैं, उन्होंने कुछ पूछा है जो उनके मन में डाउट रहता है। आई एम सो थैंकफुल टू यू सर, और ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट हु इज हियर and who participated, who raised question, I thank you sir, thank you so much from the bottom of my heart. And the students like Shubham, Prince, Bhavya, who have raised, Manisha, who have raised this question, good, you should always come up with good questions and the real questions, real doubt, so that the sole purpose of organizing such sessions to motivate you, to clear your doubts, to give you certain enlightenment on certain subjects should be made. तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा आ जाते, जब भी मैं तंग करती हूँ आपको, हमेशा ही तंग करती रहती हूँ। और थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आप बिल्कुल, मैं विश करूंगा कि आप ग्रो करें, अच्छे परफॉर्म करें और अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, हेल्थ रखें कहीं ना कहीं, और बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। थैंक यू सर। सो मच सर।